Okay, so now let us start figuring out value of trigonometric ratios for some standard angles. So first angle we will be finding the values for is 45 degrees or how much is this going to be in radians? जल्दी से बताइए. In radians this is going to be equals to pi by 4 radians. Perfect. Now we all know how to convert radians to degree. So 45 in degrees is equals to pi by 4 radians. So let us find out the value of trigonometric ratios for the standard angle of 45 degrees. So let us make a triangle here, and we already know that value of trigonometric ratios for an angle are independent of the length of the sides of the triangle. So ये triangle किसी भी length का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The value of trigonometric ratios is going to be same because it is just dependent upon the angle. Okay. So मैं ये triangle किसी भी length का बनाऊं, इससे इस angle के trigonometric ratios की value पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So let us say this is a triangle ABC, right angle triangle. ये तो है 90 डिग्री. एक एंगल है हमने बोला 45 डिग्री. इसका मतलब दूसरा एंगल भी होगा 45 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी से. So what I get is this is an isosceles triangle, which means BC is going to be equals to AB. So let us say BC is equals to A. So AB is going to be even equals to A. Clear? हम पता कर रहे हैं 45 डिग्री के एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू. हमने ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल. एक एंगल है 90 डिग्री, दूसरा है 45 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली दूसरा एंगल भी होना चाहिए 45 डिग्री. तो ये हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल. लेट अस से BC is A, this means AB is even going to be equals to A. Now by Pythagoras theorem what is going to be AC? जल्दी से Pythagoras theorem निकाल के मेरे को AC की वैल्यू बताइए. This is going to be equals to under root A square plus A square, which is going to be equals to under root 2A. Perfect. तो अब मुझे बताइए यहाँ से sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी. sin 45 डिग्री की वैल्यू होगी which is sin C is going to be equals to opposite side upon hypotenuse, that is A upon root 2A, which is going to be equals to 1 upon root 2. Clear? Cos 45 which is cos C, adjacent side upon hypotenuse, which is again going to be equals to 1 upon root 2. tan 45 की वैल्यू और tan C opposite side upon adjacent side, which is A upon A, which is equals to 1. Now tell me what is cosec 45 डिग्री. या तो डायरेक्टली साइन का इनवर्स कर दीजिए या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, विच इज A रूट 2 अपॉन A, विच इज रूट 2. sec 45 वन वे इज कि cos 45 का इनवर्स ले लीजिए या फिर हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, विच इज A रूट 2 अपॉन A, विच इज इक्वल्स टू रूट 2. एंड नाउ cot 45 डिग्री और cot C, या तो tan 45 का इनवर्स ले लीजिए या फिर एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड, विच इज A अपॉन A, विच इज इक्वल्स टू 1. So these are the standard values which you should remember for angle 45 degree. Sin 45 degree is 1 upon root 2, cos 45 degrees is 1 upon root 2 and tan 45 degrees is 1. So अब ये तीन रिमेंबर है तो cosec की वैल्यूज तो आसानी से निकाल सकते हैं. Cosec 45 डिग्री would be root 2, sec 45 डिग्री would be root 2 and tan 45 degree would be 1. Clear? So these are the standard values for, these are the values of standard values of trigonometric ratios for 45 degree angle. Now let us find for 60 degrees and 30 degrees. सभी ने नोट डाउन कर लिया था ना? Okay. Now let us find for 60 degrees
और हाउ मच इज 60 डिग्रीज इन रेडियंस, जल्दी से बताइए। व्हाट डू यू नो, 180 डिग्रीज इज पाई रेडियंस, so 60 degree is going to be equals to pi by 3 radians. Perfect, pi by 3 radians. And इसी के साथ हम एक और की वैल्यू निकालेंगे which is 30 degree, and how much 30 degree is going to be equals to, it is going to be equals to pi by 6 radians, just half of it, or pi by 6 radians. Clear? So basically हमारे पास कुछ ऐसा ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल ए बी सी, ओके, दिस इज 90 degrees. I say this angle is 30 degree and this angle is 60 degree. वेरी क्लियर, अगर एक एंगल 30 डिग्री तो दूसरा एंगल को 60 डिग्री होना ही पड़ेगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। एक 90 डिग्री तो इन दोनों का सम भी 90 होना पड़ेगा। सो एंगल सी एंड एंगल ए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड 30 एंड 60 डिग्री आर इवन फॉर्म अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर। तो हमें इस ट्रायंगल के लिए sin 30 cos 30 tan 30 निकालना है और sin 60 cos 60 और tan 60 की वैल्यू निकालनी है। सो वन थिंग आई नो कि एक की भी किसी की वैल्यूज मिल गई तो बाकी सब की तो हम निकाल ही सकते हैं। Now let us see इस ट्रायंगल की वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं। So let us do one thing, मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यहां ड्रॉ करती हूं, ठीक है, ए बी और let us say not A B C because we already made PQR। बेसिकली मैं क्या चाहती हूँ, मैं इस ट्रायंगल के लिए साइड का साइड्स का रेशियो निकालना चाहती हूँ। उसी को पता करने के लिए हम यहाँ कुछ और करते हैं। Let us say we have an equilateral triangle here. This triangle is P Q R. Okay. This angle would be 60 degree. This angle would be 60 degree, and even this angle is going to be 60 degree. Perfect. Now, what I do is I am drawing a perpendicular from P on side R, and let us say this is S. So this is perpendicular. Now this is a equilateral triangle. So equilateral triangle में जो perpendicular होती है वही median होती है और वही perpendicular bisector भी होती है। This is all we know. For an equilateral triangle, median is perpendicular bisector and that is the altitude for the triangle, which means S जो यहाँ पे P से perpendicular है QR पर, वो इसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, विच मीन्स QS इज इक्वल्स टू SR और वही एंगल बाइसेक्टर भी है। सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ऑल्टीट्यूड सभी सेम लाइन होती है, ये तो हम जानते हैं। सो अगर हमने यहाँ से PS परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पक्का, वो एंगल बाइसेक्टर भी है। मतलब यहां पर ये एंगल और ये एंगल अब इक्वल होंगे क्योंकि इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया एंगल को। दिस परपेंडिकुलर P हैज एज बाइसेक्टेड एंगल P एंड दस इवन बाइसेक्टेड साइड QR। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री और ये एंगल भी हो गया 30 डिग्री। क्लियर? सो अगर ये साइड A है तो ये पूरी साइड हो जाएगी A, विच मीन्स QS क्या हो जाएगी A/2। सो अब ये देखिए, ये ट्रायंगल PQS, दिस एंगल इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री। अगर अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करिए तो समझिए कि 30 डिग्री के जो ऑपोजिट साइड है फॉर दिस ट्रायंगल हाइपोटेनस का मेजरमेंट अगर A है, सो लेट अस से यहाँ पे हाइपोटेनस का मेजरमेंट है K, ओके। तो इसके प्रोपोर्शन में जो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है उसका मेजरमेंट होता है A/2। सो दिस साइड वुड बी K/2। क्लियर? समझ में आया हमने क्या किया? एक और बात समझाती हूँ। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया, ऑल साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल 60 डिग्री, परफेक्ट।
अब मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया S पर. What I know is for a equilateral triangle मीडियन ही एंगल बाइसेक्टर है, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही ऑल्टीट्यूड है, सब कुछ है. तो ये जो PS हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही एंगल बाइसेक्टर है. इसका मतलब ये जो साइड QR है अब ये बाइसेक्ट हो गई है पॉइंट S पर. सो दिस साइड वुड बी A/2 एंड दिस साइड वुड बी A/2. और ये एंगल है 30 डिग्री और ये भी एंगल है 30 डिग्री. अब मैंने क्या किया कि आप सिर्फ इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए. यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल PQS, ठीक है. इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल को कंसीडर कीजिए. इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस KA है, तो लेट अस से कि यहाँ हाइपोटेनस K है. मैंने देखा कि अगर हाइपोटेनस A है तो 30 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड होती है उसका मेजरमेंट होता है A/2. सो अगर यहाँ हाइपोटेनस A है तो 30 डिग्री की जो ऑपोजिट साइड हुई उसका मेजरमेंट क्या हो जाएगा? K/2. क्लियर? कोई डाउट? ओके. नाउ इफ दिस इज K/2, तो मुझे बताइए पाइथागोरस थ्योरम से BC का मेजरमेंट क्या आएगा? जल्दी से. इट वुड बी K² माइनस K²/4 अंडर रूट, विच वुड बी √3 K/2. It would be under root of K² minus K²/4. So it would be under √3 K/2. So this is our side BC. Now tell me the values of sin 30 degree, cos 30 degree and tan 30 degree. अब तो निकालना आसान है. So यहाँ से sin 30 क्या हो जाएगा? Sin 30 degrees would be K/2 upon K, which is 1K/2 upon K, which is equals to 1/2. What would be cos 30 degree? Cos 30 degree would be √3 K/2 upon K, which is equals to √3/2. What is going to be tan 30 degrees? It is going to be equals to K/2 upon √3 K/2, which is nothing but 1 upon √3. Similarly, what is going to be the value of cosec 30? Now I can just directly inverse sin 30 degree, so it is going to be 2. What is going to be sec 30 degrees? It is going to be 2 upon √3. Just cos 30 का इनवर्स कर दो, वो ही आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं. And what is going to be cot 30? It is going to be √3. So these are the values of trigonometric ratios for angle 30 degree or π/6. Now let us find the value for trigonometric ratios for 60 degrees. So what is going to be sin 60 degrees? It is going to be equals to √3 K/2 upon K, which is nothing but √3/2. What is going to be cos 60 degrees? Cos 60 degrees is K/2 upon K, which is 1/2. And what is tan 60? Tan 60, tell me fast, what is tan 60? It is √3 K/2 upon K/2. Which is nothing but √3. And from here, what is going to be cosec 60? Cosec 60 degrees is going to be equals to 2 upon √3. Sec 60 degrees is going to be equals to 2 and cot 60 degrees is going to be equals to 1 upon √3. So these are the values, standard values for trigonometry ratios for angle 60 degrees. Once again, जरूरी नहीं है कि आप इन सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज को याद रखें. बहुत आसानी से आप कभी भी इसके थ्रू आसानी से वैल्यूज डिराइव कर सकते हो. यू जस्ट नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू वैल्यूज डिराइव होती है. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज फाइंड इट आउट. देयर इज नो नीड टू क्रैम्प और रिमेंबर.
एंड वंस अगेन जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे तो इवेंचुअली यू विल गेट अ लेवल एंड यू विल जस्ट लर्न दिस वैल्यूज बाय हार्ट. आपको डिराइव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक आध डिराइव करना पड़ेगा, देन यू विल बी थॉरो विद ऑल दीज वैल्यूज. क्लियर? नाउ नोट इट डाउन. कैन आई इरेज? ओके. सो नाउ let us find trigonometric ratios for angle 90 degree. अभी तक हमने हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और हमने एक्यूट एंगल्स के लिए वैल्यू निकाली, पर 90 डिग्री के लिए हमने वैल्यूज अभी तक नहीं निकाली. तो देखते हैं अगर 90 डिग्री एंगल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या हो जाएगी. सो वी आर फाइंडिंग इट फॉर नाउ. 90 डिग्री और π/2 रेडियंस. सोचिए अगर अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में दूसरा एंगल 90 डिग्री हो गया तो सिचुएशन कैसी हो गई. सोच पा रहे हैं? नाउ द triangle is having two angles of 90 degrees, which means the third angle has to be 0 degree. So what is this? Not a straight line. Let us try to visualize it. Let us say ये हमारा ट्रायंगल है ABC. ये तो है 90 डिग्री और हमें पता करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 90 डिग्री. तो लेट अस सी जो एंगल C है ये धीरे धीरे 90 डिग्री को टेंड करता जाता है. तो क्या होगा, ये एंगल A धीरे धीरे 90 डिग्री को टेंड होता जाता है. तो कैसा हो जाएगा? देखो जब एंगल A 90 डिग्री होगा तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि ये जो साइड AB है ये बिल्कुल BC पे कोलैप्स कर पाएगी. देखते हैं कैसे. So when angle A tends to 90 degree, so angle A tends to 90 degree. Let us see how this triangle would be then. तब ये होगी हमारी साइड AC. This would be our side PC. एक पॉइंट होगा. Let me draw this triangle now. Okay. Let us say this is our initial triangle BCA. अब मैं क्या कर रही हूँ? I want this angle to become 90 degree. So एक पोजीशन होगी जब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है. फिर एक पोजीशन आएगी okay, this is BC. जब ये A कुछ यहाँ पे आ जाएगा, गेटिंग इट. बट जब एंगल A को 90, सो यहाँ से यहाँ में A का मेजरमेंट बड़ा. सो लेट अस से दिस इज θ1, दिस इज θ2, दिस इज θ3. सो यहाँ से यहाँ तक हम एंगल का मेजरमेंट बढ़ाते जा रहे हैं क्योंकि आई वांट दिस θ1 टू बी 90 डिग्री. एंड व्हाट वुड बी द पॉइंट व्हेन this angle A is just about to be 90 degree. So सोचिए when this angle A is in this triangle ABC is just going to be 90 degree, तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसी कुछ सिचुएशन होगी. देखिए ये एंगल, लेट अस से ये हमारा ट्रायंगल है. ओके अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो ऊपर एंगल A है ये 90 डिग्री हो जाए. तो ये ऐसे मूव करता गया. लेट मी टेक वन मोर चॉक. ओके देखिए ऐसे. लेट अस से ये है हमारा ट्रायंगल ABC, ठीक है. ये जो ऊपर है ना पिंक और ग्रीन चॉक, सॉरी ब्लू और पिंक चॉक, ये हमारा एंगल A है जिसको हमें 90 डिग्री टेंड करना है. तो क्या होगा, एंगल A 90 डिग्री टेंड होगा तो ये नीचे होता जाएगा, नीचे होता जाएगा, नीचे होता जाएगा और एक पॉइंट आएगा व्हेन दिस वुड बी 90 डिग्री. सो BC और हमारी साइड AB एकदम एक दूसरे पे कोलैप्स कर जाएगी और दे वुड जस्ट कोइंसाइड. तो दिस इज दिस सिचुएशन. यहां पर A बिल्कुल BC से कोलैप्स करेगा और उसी के ऊपर कोइंसाइड करेगा. सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाएगी. लेट अस सी. सो ये AB बिल्कुल BC को कोलैप्स करने लगेगी. So this would be our point A. और when this would be 90 degree, what would be the situation? जब ये 90 डिग्री हो जाएगा
तो BC AB के ही ऊपर आ जाएगी. So this would be our point D, this would be our point C and this would be again our point A. So ऐसे केस में मुझे बताइए AC की लेंथ क्या बची? AC की लेंथ तो ऑलमोस्ट 0 ही हो गई. अब ऐसे में लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो हमें साइन 90 डिग्रीज के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं. When this angle is going to be equals to 90 degree. So sin 90 या फिर sin angle A क्या हो जाएगा? It would be BC upon AC. ये तो क्लियर है. Opposite side upon hypotenuse. Sorry, it would be BC upon AB. या अब मैंने क्या देखा? When angle A tends to 90 degree, so BC AC के बराबर हो जाता है और AC 0 हो जाता है. Which means BC would be almost equals to AB. Clear? So this would be equals to 1 when angle A tends to 90 degree. इसी सिचुएशन से समझ लीजिए ना. वापस से देखते हैं. ये एंगल A था राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है. ये हाइपोटेन्यूज थी ग्रीन चौक और जो नीचे पिंक चौक है वो हमारी परपेंडिकुलर साइड, ऑपोजिट साइड थी. जैसे 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 ये एंगल ये 90 डिग्री बनता गया, ग्रीन चौक और पिंक चौक एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गई, मतलब दोनों लेंस इक्वल हो गई. सेम सिचुएशन यहाँ पे है. BC और AB इक्वल हो गए तो sin 90 की वैल्यू हो गई 1. अब बताइए cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? यहां से देखिए cos 90 डिग्री वुड बी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज which would be AC upon AB. ठीक है. अब यहां देखिए जब एंगल A 90 डिग्री बना तो AC क्या है? AC तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. AC 0 हो गया क्योंकि A और C एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए थे. जब एंगल A 90 डिग्री बना था तो ये पॉइंट A तो यहां आ गया, तो C और A तो कोइंसाइड कर गए, तो मतलब AC तो 0 हो गया. It would be 0 upon AB which is equals to 0. So what is cos 90 degrees? It is equals to 0. और tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री क्या होता है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड which is AC upon BC. It is AC upon BC. Sorry, BC upon AC. Opposite side is BC and adjacent side is AC. So it is going to be BC upon AC. और हमारे सिचुएशन में क्या होगा? When angle A is 90 degree, BC और AC, BC क्या हो जाएगा? It would be equals to AB. But what is going to be AC? AC is going to be 0. So this is going to be BC upon AC which is 0. So this is going to be not defined. Because anything divided by 0 is not defined. This is all what we know. Now let us find the value of cosec 90 degree. Simple यहाँ से देख लीजिए. cosec 90 डिग्री क्या होगा? sin 90 डिग्री का इनवर्स. So this is going to be equals to 1. Then let us find sec 90 degrees. sec 90 डिग्री क्या हो जाएगा? In this case it would be AB upon 0 which would be not defined. And what would be tan 90 degree, cot 90 degrees? Cot 90 degree would be 0 upon BC which is going to be equals to 0. So हमने यहाँ से क्या देखा? 90 डिग्री के लिए sin 90 डिग्री is 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू हो गई 0, tan 90 डिग्री becomes to be not defined because यहाँ पे base 0 हो गया, cosec 90 डिग्री is 1, sec 90 डिग्री is again not defined and cot 90 डिग्री is 0 upon BC. ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? क्यों हमने ऐसा कहा? जब एंगल A 90 डिग्री टेंड हो रहा था तो BC और AB एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए. परफेक्टली क्लियर? इसको नोट डाउन कर लीजिए. देन वी विल फाइंड द लास्ट वैल्यू दैट इज trigonometric ratios for 0 degree. Just note this down. Next we will be discussing value of trigonometric ratios for standard angle of 0 degree or 0 radians.
जब हमने 90 डिग्री निकाला था तो हमने इनडायरेक्टली इस वाले केस को भी सॉल्व कर ही लिया था, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सैनिटी इसको एक बार वापस से स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं सो दैट इट बिकम्स क्लियर और 90 डिग्री का भी रिविजन एक बार फिर से हो जाएगा. सो इस ट्रायंगल में now let us say angle C tends to 0 degree. So what I am telling, angle C is tending to 0 degrees. और जैसे जैसे एंगल C 0 डिग्री टेंड होगा तो इनडायरेक्टली क्या होने वाला है, एंगल A is going to tend to 90 डिग्री. क्लियर? सो सेम सिचुएशन जो हमने लास्ट केस में डिस्कस की थी. सो लेट अस सी व्हेन एंगल C tends to 90 डिग्री तो यहाँ क्या होता है. ओके, व्हेन एंगल C tends to 90 डिग्री तो पहले तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा हो जाएगा, सॉरी एंगल C tends to 0 डिग्री और एंगल इनडायरेक्टली व्हाट इन दिस केस विल हैपन इज एंगल A 90 डिग्री बनता जाएगा. C B C B. ओके, सो जब एंगल C 90 डिग्री बनेगा तो ये ट्रायंगल कैसा होता जाएगा, सॉरी एंगल C जब 0 डिग्री बनेगा तो ये एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा होता जाएगा. An angle when angle C is going to be about to be 0 degree, I mean just 0 degree. So ये एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा हो जाएगा. ये होगी हमारी साइड BC और ये होगी हमारी साइड AC. And when angle C would be 90 degree, that is now when angle C is equals to 0 degrees. So my side BC and AB are going to coincide. So my CB and A are going to coincide और ऐसे B और A point एक दूसरे पे कोलैप्स कर जाएंगे या coincide कर जाएंगे. अब इस केस में let us try find values. What would be sin 0 degree? Sin 0 degrees. It is going to be AB upon AC. जब 0 डिग्री हो गया C तो AB तो बचा ही नहीं, 0 हो गया. It would be 0 upon AC which is going to be equals to 0. What is going to be cos 0 degrees? Cos 0 डिग्री क्या होगा, BC upon AC. Clear? Now when AB would be 0 and angle C would be 0 degrees तो AC और AB दो एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गए थे. सेम सिचुएशन. नाउ हमारा एंगल C कौन सा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा एंगल C क्या है, ये पिंक और ब्लू चौक. जैसे ये C 0 हुआ तो पिंक और ब्लू चौक एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गई, सेम लेंथ, which means BC upon AB which would be equals to 1 because BC would be in this case equals to AB. Tan 0 degree, it would be BC, yeah, tan 0 degree, it would be AB upon BC which would be 0 upon BC and which is going to be equals to 0. Clear? कोई डाउट? Sec cosec 0 degree, cosec 0 degree क्या हो जाएगा, it would be AC upon 0 which is not defined. Now what would be sec 0 degree? Tell me what is going to be sec 0 degrees? It is going to be AC upon BC which is again going to be equals to 1. And what is going to be cot 0 degrees? Cot 0 degrees केस में हो जाएगा BC upon AB which is going to be equals to BC upon 0 and which in this case is going to be not defined because anything divided by 0 is not defined. So what do we have now? For 0 degree, sin 0 degree is 0, sin 90 degree क्या होता था 1, cos 0 degree is 1 and what used to be cos 90 degrees, it used to be 0, tan 0 degrees is 0 and what would be was tan 90 degree, it was not defined.
cosec 0 degree is not defined, but cosec 90 degree used to be 1. Sec 90 degree is 1, but cosec 90 degree used to be not defined. Cot 0 degrees is not defined, but tan 0 degree used to be 0. So is this clear? Trigonometric ratios. So we have discussed trigonometric ratios for 45 degree pi by 4, 30 degrees pi by 6, 60 degrees pi by 3, 90 degrees pi by 2 and 0 degrees, that is 0 radians. So is this perfectly clear to everyone? Very clear? So just note this down and let us do one thing. Let us summarize all this discussion and form a table जिसमें हम सारे trigonometric ratios की value लिख देते हैं. Just note this down first.